Hello students, welcome to my YouTube channel Education Point. As I promised that I am going to launch my channel on 5th of May 2020. Here comes with the first topic of class 10th, that is trigonometry. So without wasting our time, let's start introduction to trigonometry. First of all, for class 10th, what is trigonometry? It is basically a branch of mathematics which deals with all the measurements of an angle. So let us see what is trigonometry. Let us divide the trigonometry into two sections, that is tri, which means triangle, and the other portion is metry, that is geometry. You all are very familiar with triangle and geometry. So basically what we study in terms of triangle of geometry is trigonometry. In trigonometry, we will deal with spatial triangle, that is right angle triangle. In right angle triangle, we have a very brilliant theorem, that is Pythagoras theorem. And what does Pythagoras theorem states? It states that the square of hypotenuse is always equals to the sum of square of perpendicular and square of base. It means h square is equals to p square plus b square. We have already stated the Pythagoras theorem in earlier session of class 9th, that hypotenuse square will be equal to perpendicular square plus base square. So now what applications we are going to use of Pythagoras theorem in trigonometry is, let us, in trigonometry there are some assumption we have to follow. The basic three assumption. Number one is sine ratio, which is said to be sine theta. Number second, cosine ratio, which is said to be cos theta. And the number third is tangent ratio, it means tan theta. So these are the three assumptions, T ratios. Now what does it contains? Sine theta means perpendicular upon hypotenuse, cos theta means base upon hypotenuse, and tan theta means perpendicular upon base. These are the most three important function of this T ratios, that is trigonometrical ratios. Now how this formula comes, let me tell you the shortcut tricks what I have learned in my school. There was a code to learn very in easiest trick, that is Pandit Bhadri Prasad Har Bole. Isn't it very funny? Okay, so Pandit Bhadri Prasad Har Bole. So its first section contains of sine, the second section contained of cos, and the third portion is tan. So just learn those tricks, that Pandit Bhadri Prasad Har Bole. So it automatically learn that the first one is sine theta, the second one is cos theta, and the third one is tan theta. Now what if I have to take inverse of that? अगर मान लो हमें कभी जरूरत पड़ गई हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर की, हाइपोटेनस अपॉन बेस की, एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अगर मुझे इसके इन्वर्स चाहिए तो हमें इसके इन्वर्स एजम्पशंस भी होंगे. सो लेट अस टॉक अबाउट द इन्वर्स एजम्पशंस. तो साइन का इन्वर्जन होता है को सेकेंड, यहां से लिखते हैं को सेकेंड रेशियो, जिसको हम बोलते हैं cosec theta, that is fourth one, and the fifth one is second ratio
that is sec theta, and number 6 is cotangent ratio, that is tan theta. So what will be the value of cosec theta? It will be h upon p. What will be the value of sec theta? It will be b upon h. And what will be the value of cot theta? It will be base upon perpendicular. So just remember the three ratios and inverse of the three ratios: sine, cos, tan, cosec, sec, and cot. Okay. Now the basic of right angle triangle is that if in a right angle triangle ABC, this one will be a 90 degree. If I am watching from here, अगर मैं यहाँ से किसी चीज को देख रहा हूँ, दैट इज ये मेरा कोई एंगल थीटा है, तो उसके लिए ये बेस हो जाएगा और उसके सामने वाला जी क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। सिंपल सा थ्योरी है कि अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो हम जहाँ पे खड़े हैं वो हमारा बेस है और हमारे जो सामने है वो एग्जैक्टली उसका क्या है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपनी जगह में हमेशा से रहेगा। हाइपोटेनस विल नॉट बी चेंज फॉर एनी कंडीशन। ओके, तो अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे इसके सामने देखा तो हमने ये परपेंडिकुलर बन गया। अगर यहाँ पास थीटा है तो इसके सामने वाला क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। और जिस जगह पे हम खड़े हैं वो क्या हो जाएगा? बेस। इसको हम आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। जब क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने तो हमें रियल में समझ में आएगा कि जब हमारे पास एंगल्स की वैल्यू चेंज होगी बी के लिए, सी के लिए या ए के लिए, तो कैसे परपेंडिकुलर और बेस अपनी जगह को इंटरचेंज करते जाएंगे। सो वहाँ से ये बहुत ज़्यादा इजी होगा। इसके बाद जस्ट मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। एक और छोटी सी बात मैं आपको इस ट्रिग्नोमेट्री में समझा देता हूँ कि हम ये जो वीडियो बनाने वाले हैं, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री में 4 तरह के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। 4 अलग अलग पोर्शंस में मैं ये वीडियो बनाऊंगा। पहला जो वीडियो बन रहा है हमारा वो बनेगा ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स पे, सिंपल सा रेशियोज पे बनेगा पहला वीडियो हमारा। दूसरा वीडियो आज हम यही टॉपिक कवर करेंगे। दूसरा बनेगा ट्रिग्नोमेट्री विद सम पर्टिकुलर एंगल्स। इसमें हम कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उसके बाद पढ़ेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दैट इज 90 माइनस थीटा, एंड द लास्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ये टोटल 4 सेक्शन है हमारे पास जिसमें हम पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री को क्लास 10 के लिए कवर कर सकते हैं। यस, मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कुछ आईसीएसई के बच्चे भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आईसीएसई के सिलेबस में क्लास 9th में उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया है। सो क्लास 9th के बच्चे आईसीएसई के जो भी हैं वो इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। इसमें वो सारे टॉपिक्स आपके कवर्ड हो जाएंगे जो आपके 10th के सीबीएसई पोर्शंस में हैं। ओके, तो हम पहला टॉपिक से शुरुआत करते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप पकड़ते हैं, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 8/17 देन फाइंड ऑल द 6 रेशियोज। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर साइन ए इज इक्वल्स टू 8/17 है तो हमें सारे 6 के 6 टी रेशियोज निकालने हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। अब यहाँ पे एंगल ए कैसा लेना है इसको हम देखते हैं। सपोज करो ये हमने पहले डायग्राम बनाया, ठीक है।
इसको बी ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बनेगा, दैट इज 90 डिग्री। अब इसके रिस्पेक्ट में हमें सारे टी रेशोज फाइंड आउट करने हैं। सारे टी रेशोज मतलब हमने अभी जस्ट पढ़ा 6 टी रेशोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमको टी रेशोज अगर फाइंड कर रहे हैं तो सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस एंड द थर्ड वन इज हाइपोटेनस। ओके, तो क्या हमारे पास तीनों वैल्यू अवेलेबल है? देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। साइन ए इज इक्वल्स टू 8/17 दिया है, सो लेट अस रिकॉल द फॉर्मूला दैट पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। सो द फर्स्ट फॉर्मेट इज ऑफ साइन, इट मीन्स हमारे पास परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 8 एंड द सेकेंड वन इज हाइपोटेनस जो दिया हुआ 17। क्या नहीं है हमारे पास? बेस नहीं है हमारे पास। बेस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम? यस, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। अच्छा, हम जब वैल्यू लेते हैं तो लेट मान लेते हैं कि इसके साथ एक कांस्टेंट है k, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी लेंथ लेते हैं तो उसकी कुछ यूनिट्स होती हैं, लेंथ की सेंटीमीटर मीटर में होती है। यहाँ पे कुछ यूनिट्स नहीं दिया हुआ है तो हमने मान लिया कि उसकी वैल्यू कुछ k होगी। तो लेट अस टेक अ कांस्टेंट k, पुट द वैल्यू दैट इज 17k², 8k² and the last one is b², that is 289k², that is 64k² and it is 289k² minus 64k², that is equals to base square, 9 minus 4 that is 5, 8 minus 6 225k², that is base square. Now the base will be 15k। So हमारे पास अब वैल्यू भी क्या आ गई है इसकी 15k। Now it will be very much easier for us to find all the 6 T ratios respect to angle A। तो चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंपल सा फंडा है बस यहाँ पे, T रेशियो फॉर एंगल A। एंगल A के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे देख रहे हैं हम, ठीक है, तो इसके सामने वाला क्या होगा बोला मैंने, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस की जगह तो चेंज होनी से नहीं है। ओके, सो लेट अस राइट डाउन फॉर टी रेशियो फॉर एंगल ए, perpendicular will always be BC। Now what is the value of BC here? That is 8k. What is base over here? That is 15k. And what is hypotenuse here? That is 17k. Okay. Now the 6 T ratios will be sin theta, that is Pandit Badri Prasad Har Bole, that will be P upon H. The second one is cos theta, will be base upon hypotenuse, and the third one is tan theta, that is equals to P by D. Now just put the value, that is P upon H. What is P here? That is 8 upon 10. Okay, this was given in our question, that 8/70. Now the next, that is base upon hypotenuse, 15k upon 17k. Cut the values, it will be 15 upon 17. Perpendicular again, that is 8k, and what is the base? 15k. Cut the value, that will be 8/15. सिंपल था बहुत ज़्यादा। तो साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया। आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। सो साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। एंड टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। सो कॉसेक विल बी व्हाट? h upon p. Sec will be what? h upon b. What will be cot? b upon p.
h, that is 17, perpendicular, that is 8, again 17, that is 15, it will be a 15 upon 8. So ये है हमारे बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जिसके बारे में पूरा चैप्टर है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट. अब ये तो बहुत सिंपल सा फंडा था जिसपे हमें वैल्यूज गिवन थी, निकाल लिया था हम लोगों ने. अब अगर मैं सेम क्वेश्चंस को रखूं, नहीं चलो एक काम करते हैं, एक नया क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मैं तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालूंगा, दैट इज साइन ए, साइन बी, साइन सी, तीनों निकाल के देखते हैं. तो उसमें समझ में आएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस तरफ से एंगल्स देखूँ तो सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जहाँ हम खड़े वो बेस है, हाइपोटेनस की जगह चेंज नहीं होगी. तो लेट अस टेक द सेम क्वेश्चन, बस मैं यहाँ पे फाइंडिंग करने का जो मेथड है वो चेंज कर देता हूँ. ठीक है, इस टी रेशियोज को मैंने हटा दिया. ओके, द क्वेश्चन इज if sin A is equals to, if sin A is equals to 8 by 17, find sin B, sin C, और ले लेते हैं अपन cos A and cos C. अब साइन बी, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी, ये क्या क्वेश्चन आ गया? ये वही क्वेश्चन आएगा जिसपे हम लोग देखेंगे कि कैसे एंगल्स पे डिपेंड होकर के वैल्यू चेंज होती है. मतलब जैसे मैंने बोला था कि जिधर साइड से भी एंगल बनेगा, मतलब कि मैं उसके अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर पता करूंगा, और जहाँ पे मैं हूँ वो मेरा बेस होगा. हाइपोटेनस की जगह कभी भी चेंज नहीं होने वाली. तो चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल्स के साथ हम ऊपर से शुरुआत करते हैं. अगेन मैं मान लिया ये बी है, ये ए है, ये सी है. क्योंकि हमें पता था कि ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है. ये 8 हो गया, ये 17 हो गया. पिछले वाले कैलकुलेशन में हमने बेस निकाला था 15, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ T ratios for angle B, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ T ratios for angle C. ठीक है, पहले हम देखते हैं B के रेस्पेक्ट में क्या क्या आता है. अगर ये B है 90 डिग्री यहाँ पे, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है. हमने हमेशा से कहा है कि 90 के सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है? हाइपोटेनस. उस केस में कोई भी प्लेस चेंज नहीं होती है. 90 के सामने वाला राइट एंगल में हमेशा हाइपोटेनस होता है, और जहाँ से हम देख रहे हैं वो हमारा क्या हो गया? बेस हो गया. तो बची कौन सी साइड? परपेंडिकुलर. नाउ फॉर टी रेशियोज इन एंगल बी, परपेंडिकुलर विल बी 8K, base will be 15K, and the hypotenuse will be 17K. तो अब मुझे यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू, मैं यहाँ पे cos B भी लिख देता हूँ. ठीक है, तो हमको निकालनी है यहाँ पे एक sin B, और निकालना है हमें cos B. ये बहुत सिस्टमैटिक तरीका है जहाँ पे आप रेफरेंडम एंगल्स के साथ आप अपने टी रेशियोज को बता दो कि टी रेशियोज एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू कौन सी है. क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा जब हम सी के लिए बनाएंगे, तो इनमें से वैल्यू चेंज होने वाली है. देखेंगे कैसे. ओके, तो साइन बी, अगेन शॉर्टकट टेक्निक. हमें क्या पता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. सो द फर्स्ट फॉर्मेट इज ऑफ साइन, so that is P by H. अब परपेंडिकुलर क्या है? 8, एंड हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? 17K. आ गया बराबर. इस पे अपन एक साइन cos B भी निकाल लेते. चलो पहले फिर साइन C की तरफ जाएंगे.
कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस. व्हाट इज द बेस हियर? दैट इज 50. व्हाट इज द हाइपोटेनस हियर? 70. काटा 15 अपॉन 17 आ गया. अब टी रेशियोज फॉर एंगल सी देखते हैं. मतलब अभी मैं यहाँ पास हूँ, तो यहाँ पास हूँ मतलब क्या हुआ? इसके अपोजिट क्या हो गया? परपेंडिकुलर बन गया. और जिधर से मैं देख रहा हूँ वो मेरा उसका बेस बन गया. हाइपोटेनस की जगह कभी चेंज नहीं होने वाली है. तो अगेन राइट डाउन. अब देखो यहाँ पे चेंज आ गया बच्चों. बेस क्या बन गया हमारा? 8. परपेंडिकुलर क्या बन गया हमारा? 15. और हाइपोटेनस तो चेंज होने से रहा, वो हमेशा 17 ही रहेगा. चेंजेस सिर्फ और सिर्फ किस में आने वाले हैं? परपेंडिकुलर और बेस पे आने वाले. ठीक है. चलो तो देखो, अगर आप कंपैरेटिव करते हो एंगल बी और एंगल सी को देखते हो आप, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास? 8K था. वहाँ पे कौन है? 15 की उल्टे. बेस क्या था? 15 था. वहाँ पे बेस क्या बन गया? 8. उल्टा हो गया है. हाइपोटेनस 17 का 17 रहना. मैंने शुरू से कहा है हाइपोटेनस की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली है. सो अब एंगल सी के रेस्पेक्ट में हमें कौन कौन सा निकालना है? दैट इज साइन सी और कॉस सी. सो सिंपल है बहुत ज़्यादा. साइन सी और कॉस सी के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं. अगेन हम अपने फॉर्मूले पे आ जाते हैं. साइन सी मतलब क्या हो गया? P/H. एंड कॉस सी मतलब क्या हो जाएगा? B/H. यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है? 15. हाइपोटेनस कौन है? 17. बेस कौन है यहाँ पास? 8. हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे? 17. तो ये सिंपल सा 15 अपॉन 17 बन गया और ये 8 अपॉन 17 बन गया. आया फर्क समझ में? और हमें एक क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था? एक ही रेफरेंस में. चलो देख लेते हैं. यहाँ पास देख लेते हैं. फॉर टी रेशियो आप ऐसे सेक्शंस में बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा. अगर आप डायग्राम को सोच के करोगे कि अच्छा एक बार के लिए परपेंडिकुलर ये है, एक बार के लिए बेस ये है, तो मे भी हो सकता है बनाते बनाते आप सेम वैल्यूज़ लिख दो. ठीक है. तो बेटर है आप ऐसे सेक्शंस में तोड़ दो कि टी रेशियोज एंगल बी के लिए अलग, टी रेशियोज सी के लिए अलग और टी रेशियोज फॉर एंगल ए के लिए अलग. अब ए का केस देखते हैं. ए का केस मतलब यहाँ पास है, हम यहाँ से देख रहे हैं. अब ए के सामने वाला क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है? दैट इज 8. बेस कौन हो जाएगा? 15. एंड हाइपोटेनस तो वही रहने वाला, दैट इज 17K. क्या निकालना है हमें? कॉस ए. कॉस ए का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस. व्हाट इज बेस हियर? 15. व्हाट इज हाइपोटेनस? 17. मेंशन कर दो. दैट इज 15 अपॉन 17. तो ये कुछ बेसिक्स था हमारे ट्रिग्नोमेट्रीज को स्टार्ट करने के लिए, जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंटली मैंने बताया था आप लोगों को कि 6 टी रेशियोज होंगे: साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट. अब हमने ये भी पढ़ लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम. दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हमने वो भी देख लिया. हमने ये भी देख लिया कि अलग अलग एंगल्स पे अगर हमें टी रेशियोज फाइंड करने बोलेगा तो हम कैसे निकालेंगे. इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में हमने क्या देखा? एक ही एंगल के रिस्पेक्ट में हमने 6 टी रेशियोज निकाले. कौन सा एंगल था वो? एंगल ए था वो. साइन ए इज इक्वल्स टू 8/17 दिया था. हमें क्या क्या निकालना था? हमें निकालना था कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉट ए और कॉसेक ए निकालना था. सिंपल एक ही एंगल के रेफरेंस में. अब सेकेंड क्वेश्चन हमने क्या चेंज किया? क्वेश्चन हमने वही रखा कि साइन ए इज इक्वल्स टू 8/17 है. अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग टी रेशियोज निकालते हैं. तो साइन ए तो ऑलरेडी गिवन था, साइन बी ले लिया मैंने, साइन सी ले लिया और कॉस के तीनों ले लिए, ए बी और सी. ठीक है. फिर हमने देखा कि एंगल बी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस कैसे फॉर्म करते हैं. सी के रेस्पेक्ट में भी देख लिया, ए के रेस्पेक्ट में भी देख लिया. मैं एक बार फिर से बता दूं
कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाला एंगल दैट इज हमेशा हमेशा हाइपोटेनस ही होगा। 90 के बाद जो और दो एंगल बचेंगे उस एंगल के रेफरेंस पे हम जिधर से देखेंगे उसके अपोजिट वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। एंड हम जहाँ पे खड़े रहेंगे वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो याद रखना बच्चों, हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल्स के केस में परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं, होंगे ही, बट हाइपोटेनस विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो ये पूरा एक क्वेश्चन था उस पूरे कंसेप्ट को समझाने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं डेफिनेटली उस डाउट्स को आपको क्लियर करने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। बट आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें कुछ वैरायटीज और मिल जाए हमें। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछा था, 2016 का क्वेश्चन है। If sin theta is equals to 12/13, then evaluate 2 sin theta minus 3 cos theta upon 4 sin theta minus 9 cos theta। अब ये क्वेश्चन आया जिसमें sin थीटा इज इक्वल्स टू 12/13 गिवन है एंड हमें इवैल्यूएट करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पूछा गया था 2016 में। बच्चों उसको नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, अब फिर से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। That is A, B and C. This will be again my 90 degree. Sin थीटा इसका मतलब क्या क्या गिवन होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ले लेते हैं इसको परपेंडिकुलर, ले लिया इसको हाइपोटेनस। क्या निकालना है हमें, बेस निकालना रह गया है। चलो देखते हैं फिर से। बाय पाइथागोरस थ्योरम h² is equals to p² plus b square. What is h? That is 13. What is p? Well, we have to calculate base. That is 169, 144, b square. 169 minus 144, that is p square. b square is equals to 25. b will be 5. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 5 आ गई है। अगेन हमने बोला था कि हम डायरेक्ट यूनिट्स वैल्यू को नहीं लेंगे, तो मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट फिर से ले लेता हूँ के फॉर गाना, ठीक है। चलिए अब क्या निकालने बोला है हमें, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 4 sin थीटा। ये हमारा एंगल थीटा पकड़ लेते हैं, इसको हम लोग माइनस 9 cos थीटा। अब sin थीटा की वैल्यू गिवन है, क्या नहीं गिवन है आपके पास, cos थीटा नहीं है। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एंड द सेकंड वन बिलोंग्स टू cos थीटा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस यहाँ पे क्या है, अगेन एंगल देखा हमने, बेस ये हो गया दैट इज 5k और हाइपोटेनस आपका क्या हो गया 13k। ये आ गया भाई 5/13, सिंपल सा। करें आगे सॉल्व अप। सो जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। क्या गिवन है, 2 sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पास, 12/13 माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने अभी यहाँ से, दैट इज 5/13 अपॉन 4 sin थीटा अगेन 12/13 माइनस 9 cos थीटा दैट इज 5/13। सिंपल सा, कुछ कर नहीं रहा है यहाँ पर, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देते हैं।
दैट इज 24/13 माइनस 15/13 अपॉन 12 4 48/30 माइनस 9 5 45/30। अब हम देखते हैं एलसीएम यहाँ पे क्या है, दोनों का सेम है, और जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 13 13 देखना कट जाएगा। चलो लिख लेते हैं यहाँ पर 24 माइनस 15/13 अपॉन 48 माइनस 45/30। तो ये कट गया बच्चों, समझ आया कैसे कटा है? ओके, ये आ गया आपका 9, 24 माइनस 15, ये आ गया आपके पास 3, बन जाएगा, ये आपका आंसर आ गया 3। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इफ sin थीटा इज इक्वल टू 12/13 देन इवैल्यूएट 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने है। जैसे बहुत सारे बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू बना सकते हैं। यस, मैं एक और चीज़ आपको रिकमेंड करता हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी ही बनाने से बोर्ड्स की तैयारी नहीं होगी, आपको आरएस से भी कुछ क्वेश्चंस निकालने होंगे, आपको बहुत सारी बुक्स को फॉलो अप करना पड़ेगा। जितनी अच्छी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। सो आई ट्रूली रिकमेंड कि एक बुक पे डिपेंड ना करो, सिर्फ एनसीईआरटी ही से मत बनाओ क्वेश्चंस। आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, आर.एस. अग्रवाल है, आर.डी. शर्मा है, आप उनसे भी जा सकते हो, बट मेरी पहली प्रेफरेंस रहेगी कि आप आर.एस. अग्रवाल को ही सॉल्व करें। एनसीईआरटी को तो करना ही है, बट उसके साथ साथ आर.एस. अग्रवाल को भी सॉल्व करना है, जिससे कि हमें वैरायटी मिलेगी क्वेश्चंस पे। ओके, तो यहाँ पास आज के लेक्चर में हमने ये फर्स्ट टॉपिक अचीव कर लिया है, जो सिंपल सा टी रेशोज़ के बारे में बात कर रहा है। अब आपको इसके न्यूमरस अमाउंट में क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आप आर.एस. अग्रवाल खोजते हो तो। यस, मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ। मुझे पता है आप लोग को होमवर्क से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट फिर भी कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ, ताकि जो आज हम लोग कंसेप्ट सीखे हैं वो एटलीस्ट रिमाइंड कर पाएँ, घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर पाएँ। सो आज का सेशंस के लिए बस इतना ही है। मैं कुछ क्वेश्चंस अभी बोर्ड्स पे लिख देता हूँ, जिसको आप लोग सॉल्व करना। और यस, इस पूरे सेशन में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया हो या कोई कंसेप्ट को लेकर के कोई डाउट हो, प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट्स को बताएं, जिसको मैं पढ़ करके हो सकता है एक वीडियो बनाऊं और आपके डाउट्स को क्लियर करूं। एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, कलीग्स, लाइक इफ़ यू लाइक दिस सेशन। आई होप ये मेरा पहला वीडियो सही बना है। काफ़ी नर्वस था मैं कल, जब मैंने अपने YouTube चैनल के बारे में बात किया कि यस, मैं आज 5 मई 2020 को अपना पहला वीडियो डालूंगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के लिए। बट इजी है, हो जाएगा, धीरे धीरे हम वो कैमरा कॉन्शियस दूर हो जाएगा, आ जाएंगे फ्लो पे। सो ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ बोर्ड पे, उसको आप लोग सॉल्व करना, और कोई डाउट अगर हो तो मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।